Hi everyone, this is Sumit Srivastav. Once again, I'm here with another episode of In Conversation with Sumit Srivastav. और आज मेरे एक स्पेशल गेस्ट है मेरे साथ मिस्टर मंदार जोशी. He is an angel investor, startup coach, startup mentor, entrepreneur, a chartered accountant, and whatnot. आज उनको बुलाने का रीजन ये था कि he is very active in Middle East, UAE. He's based out of UAE, Dubai only. So I used to talk in this lockdown period. I used to talk to so many leaders from India, but I wanted to understand what's going there in Dubai and UAE because pre-corona era, mein, investors were very much invested in India for Indian startups. अब क्या मिजाज है उनका, अब क्या अंडरस्टैंडिंग है पोस्ट के बाद, इम्पैक्ट के बाद, पैंडेमिक के बाद उनकी सोच में कोई चेंज आया है क्या? ये सारी जानकारी लेने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था एंड आई एम रियली हैप्पी दैट ही इज हियर विद मी. So let me have him on the screen first, and then we'll start the conversation. So, hi. Hi, Sumit. Thank you for So inviting me. Startup I'm really happy to have. Chopal is doing an incredible job. So I'm very happy to be with you. Thank you so much for acknowledgement. And I saw your profile, and I am connected to you. I know how seriously and smartly you are working. So I'm really happy as well to have you. और सबसे पहले तो बड़ा जेन्युइनली मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग अपना प्रीशियस टाइम देते हैं बिकॉज इस लॉकडाउन में वी ऑल आर मोर देन बिजी. यू नो, पहले हम बिजी होते थे, नाउ वी आर मोर देन बिजी. और इस पे जब आप लोग टाइम देते हो एंड दैट टू विदाउट चार्जिंग एनी. सो जितने भी व्यूअर्स जिन तक ये बात पहुंचती है, वी मस्ट बी थैंकफुल टू पीपल लाइक देम, राइट? So no, I must say Mandar, something, Sumit, before we start. Startup Chopal, because it is working predominantly in tier 2 and tier 3 towns and cities, as I mentioned to you before. And right. I'm very keen on mentoring those founders who don't have the vision of a larger world, and they have to get to Delhi, then they have to get to international market. So you are doing an incredible job. It's truly a privilege to connect with you and to be on your show. Thank you so much. Super. And this is really awesome. And so we are connected. So you're there with us, and you're going to support our startups. You'll be mentoring our startup. You'll be so honored we are saying this. So since we have 30 minutes, Mandar, so I have few questions on behalf of you. We want to understand what investors of Middle East are thinking, how your mindset is there any change in your mindset? So एक मैं बड़ा सिंपल सा सबसे पहले क्वेश्चन एकदम सिंपल और सोबर पूछता हूँ, जो मेरा एम था आपको यहाँ लाने का, कि कुछ दिनों पहले प्री कोरोना एरा की बात करो, जो मार्च से पहले हम प्लानिंग करते थे, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो आप जैसे थे, जो मिडिल में है, यूए में थे, वेरी मच इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इंडियन स्टार्टअप्स. आपने कई इंडियन स्टार्टअप्स में पैसे लगाए हैं ऑलरेडी, कई में एग्जिट हुआ है. तो नाउ अब जो ये एरा चेंज हुआ है, तो क्या चेंज आया है दुबई, यूएई, मिडिल ईस्ट के स्टार्टअप इकोसिस्टम में, इन्वेस्टर्स के कम्युनिटी में, और उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पे होने वाला है क्या? ये डिटेल आंसर सकते हैं. आई एम लिसनिंग टू यू, प्लीज. एक्सीलेंट, गुड क्वेश्चन. पहले ये जरूरी है कि मिडिल ईस्ट की स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझना जरूरी है. इसके लिए मैं ये नहीं बिलीव करता कि मिडिल ईस्ट की स्टार्टअप सिस्टम इकोसिस्टम इतनी मैच्योर्ड हो गई है जितनी यूएस की हुई है, या चाइना की हुई है, या इंडिया की हुई है. इट इज स्टिल डेवलपिंग, इट इज स्टिल ग्रोइंग. Predominantly investors money goes into either oil and gas sector, which is obviously the largest in the Middle East. The second one is real estate sector, and the traditional real estate sector. I'm not talking about real estate related technologies, real estate sector. और तीसरा ये है कि ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट, जो अपने लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स होते हैं. स्टार्टअप इकोसिस्टम इट इज ग्रोइंग, और गवर्नमेंट्स वहां की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो. तो बहुत सारे फंडिंग एलोकेशंस हो रहे हैं यूएई के शेख से, या फिर सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट से भी, और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा इनिशिएटिव वो अभी ले रहे हैं. नाउ अभी आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट चेंज हुआ है क्या, ये आप पूछना चाहते हो बिकॉज ऑफ कोरोना. I would say that there are two types of investors in any startup ecosystem. One category you are talking about individual investors, जैसे मैं हूँ, या फिर कई सारे एंजल इन्वेस्टर्स है या सीड इन्वेस्टर्स है जो इंडिविजुअल पैसा लगाते हैं.
और दूसरा जी जो कैटेगरी है वो वेंचर कैपिटल फंड से, ऑर्गेनाइज्ड फंड से एब्सोल्युटली वो है। तो मैं दोनों का आपको बता देना चाहता हूं कि जी अगर आप पहली कैटेगरी ले लोगे जो एंजल इन्वेस्टर्स है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, वो थोड़े से ऑब्वियसली आई वुड से डरे हुए हैं कि अचानक क्या हो गया। और अभी भी स्टार्टअप जो ये है उसमें एक रिस्की एसेट क्लास हम बोलते हैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का। तो क्यों ये रिस्की एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें, तो वो शेल में चले गए और वो अभी बैठे हैं और देख रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा। तो ये एक निगेटिव सा सेंटिमेंट है वहां पे। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली लेट अस गो टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर विच इज लार्ज वेंचर कैपिटल फंड्स। तो मैंने कुछ नोट्स बनवाए थे, आपका टॉपिक सुन के मैं आपको बता देना प्लीज चाहता प्लीज हूँ। ये कुछ 6 मैंने लिए हैं लार्जेस्ट इन्वेस्टर फंड्स जो है। तो उसमें पहला आता है अबू धाबी इन्वेस्टर अथॉरिटी, ADIA, जिनका टोटल कॉर्पस है $696 बिलियन, so $700 बिलियन। फिर ओके इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ दुबई है जिनका $239 बिलियन है। ये मैं नंबर क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वेगली नहीं बताना चाहता कि बहुत वेल्थ है, बहुत अच्छा है। तो ये रियल नंबर्स है। मुबादला या इन्वेस्टमेंट है $232 बिलियन है। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है $534 बिलियन। कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी $328 बिलियन और सऊदी PIF पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है $320 बिलियन। तो अगर आप, ये सिर्फ 6 हैं, ये सिर्फ लार्जेस्ट 6 हैं, ऐसे कई सारे बाकी है। लेकिन आप अगर ये अमाउंट्स की टोटल करें तो यू आर टॉकिंग अबाउट 2.4 ट्रिलियन US डॉलर्स of investment these funds are managing, only largest 6, and large chunk of this, not all, सारा नहीं है स्टार्टअप्स के लिए, लेकिन large chunk of this is going towards investing in startups। ये सारे फंड्स, ये 6 और बाकी सारे फंड्स बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं लास्ट मंथ से, ओके क्योंकि वो जैसे कि आप वो वेट कर रहे थे कि ये एरा आ जाए, क्राइसिस आ जाए और उनको अच्छे डील्स मिल जाए। तो वो बहुत अच्छा एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, and which is much more than the first category. Obviously, if you see amount of wealth that they are managing, it is much more than first category, which outdoes the first category. So I would say overall net देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव हो गया है इनके एग्रेसिव नेचर के हिसाब से। सो ओवरऑल आई एम वेरी पॉजिटिव। ओके ओके सो बहुत ही एक अलग पहलू, अलग ही मतलब इम्प्रेशन दिया आपने वहाँ के इकोसिस्टम के बारे में, वहाँ के इन्वेस्टर्स के। सो मेरा इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है, सिंस यू नो दैट वी आर वर्किंग इन इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू मंदार दैट हाउ, सो ये आपने बताया इतने ट्रिलियन डॉलर का उनका है और बड़ा स्पेसिफिकली आपने नंबर में बताया, आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो आप मुझे ये बताएं कि इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो स्टार्टअप्स हैं हमारे यहाँ के, दिल्ली, मुंबई, जयपुर फॉर दैट मैटर, बिकॉज आई एम सिचुएटेड देयर, सो वहाँ के जो ये लोग हैं, जो बड़े वीसीज हैं, ये लोग हैं, ये इंडियन स्टार्टअप्स की तरफ उनका रुझान कैसा है? हाउ डू यू सी देम? You're talking about Middle East investors investing into Indian startups, right? या आपका डू वो सवाल है। मतलब क्या, या मेरा ये कि क्या क्या परसेप्शन उनका यहाँ के बारे में अब, आई मीन आर दे नहीं, विलिंग टू? जनरली मैं आपको बताता हूँ, इंडियंस के बारे में परसेप्शन बहुत बहुत अच्छा है। अगर ओके आप बोलोगे कि समझो चाइनीज स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप ले लोगे तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू इंडिया, बहुत ज्यादा, वो कई गुना हमसे आगे हैं। लेकिन चाइनीज स्टार्टअप फाउंडर्स के बीच में और मिडिल ईस्ट इन्वेस्टर्स के बीच में मुझे वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं दिखाई देता। जो बहुत जरूरी है किसी को पैसा देने के लिए या फिर किसी को इन्वेस्ट करने के लिए, ये ट्रस्ट फैक्टर बहुत स्ट्रांग है इंडियन इकोसिस्टम की तरफ, which is a राइट major factor for Middle Eastern investors to come. But at the same time, क्या मैं बताता हूँ गैप क्या है आज। जी गैप ये बिल्कुल है बिल्कुल। कि उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, उनको ज्यादा पता नहीं चलता है कि वो इन्वेस्ट कैसे करे, जैसे लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या करे कि वो इंडियन इन्वेस्टर में शेयर होल्डर बन सकते हैं, ओके लॉस क्या है, कितना इनकम टैक्स उनको पड़ेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स पड़ेगा अगर वो एग्जिट हो जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन या एजुकेशन का बहुत बड़ा गैप है। नहीं तो इंटरेस्ट तो बहुत है। तो मेरी कंपनी है एम स्ट्रेटेजी LLC, वहां पे तो वो वही काम करती है, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करना और उनको उनका राइट, सही डिसीजन लेने के लिए उत्साहित करना, प्रेरित करना। दैट्स ऑसम।
तो जो आपने बात बोली, मैं व्यूअर्स के लिए बहुत 2-3 सिंपल लाइनें बता दूं कि पहले तो जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं बिल्कुल भी टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बहुत बड़े फंड्स लेके लोग बैठे हैं, अग्रेसिवली दे आर लुकिंग फॉर स्टार्टअप्स, प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स। एंड डेफिनेटली जब हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो मीनिंगफुल स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट रजिस्टर्ड अ कंपनी एंड हैव अ कार्ड, यू नो। सो फर्स्ट तो ये चीज बहुत क्लियरली इन्होंने बताई मंदार ने। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताई है कि भाई वहाँ के जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, बेसिकली उनको वो लीगल एस्पेक्ट नहीं पता है। इसके लिए मंदार जैसे लोग हैं जो ब्रिज का काम करेंगे उन फंड्स और स्टार्टअप्स के बीच में। सो यू आर द राइट पर्सन टू टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मंदार। आई रियली अप्रिशिएट दैट। और अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एंड you I'm getting what I wanted to get from you, so I'm really happy. So My pleasure, my pleasure. so मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, मैं एज इट इज मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। सो देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स यू हैव वर्क विद, राइट? इन्वेस्टेड, गॉट फंडेड, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे। एंड सो मेनी इयर्स, मैंने 5-6 सालों से तो आपने इन्वेस्ट किया ही है। सो अब जो स्टार्टअप्स को आप मार्च के पहले देखते थे, बात करते थे, उनको वैल्यूएट करते थे और फंडिंग करते थे, आपके डिसीजन मेकिंग के जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे, वो ये कोरोना ने कुछ इफेक्ट किया है क्या उसको? मेरे स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टमेंट को, बजट को नहीं अफेक्ट किया है। मैं एक ओके, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैं गुड टू हर नो। मंथ या हर क्वार्टर या हर साल जो मैं मान के चलता हूँ कि ये इतना एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो वो मैं करूंगा ही। चाहे इकोनॉमी इधर की उधर हो जाए, चाहे हाँ कोरोना हाँ, आए जाए, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बिल्कुल। पड़ा है किसमें, मैं आपको वो भी बताता हूँ। फर्क पड़ा जी, है मेरे सेक्टर वाइज आउटलुक में। हाँ डेफिनेटली हाँ, फर्क पड़ा है, डेफिनेटली यस, फर्क पड़ा है, क्योंकि मैं अभी ज्यादा देख रहा हूँ स्टार्टअप्स जो हेल्थ केयर रिलेटेड है। अगेन हेल्थ केयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर सम सॉफ्टवेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर इक्विपमेंट, जो मेरा ज्यादा वहां पे मैं इंक्लाइन हो रहा हूँ। जैसे जो इक्विपमेंट है हेल्थ केयर के लिए, उसके स्मार्ट कैसे बनाए विद इनोवेशन। तो ये हेल्थ केयर इक्विपमेंट है, सप्लाईज है, टूल्स है, फार्मास्यूटिकल है, नए नए मेडिसिन आ रहे हैं, नए नए इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने के लिए जो विटामिन के डोज अगर है तो वो आ रहे हैं। यस, ये इसमें मैं ज्यादा, मेरी इंक्लिनेशन जा रही है। दूसरी इंक्लिनेशन ओके, मेरी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा सेक्टर में पॉजिटिवली देख रहा हूँ, वो है मीडिया और एजुकेशन। ओके, क्योंकि जो मीडिया मीडिया में इवेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इवेंट्स तो अभी कुछ हो नहीं रहे, लेकिन जो मीडिया प्लेटफॉर्म या जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म या जो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, अगर उनका ऑफलाइन मॉडल जितनी जल्दी ऑनलाइन ला सके, तो उनको बहुत बहुत बेहतर है उनके लिए। तो मैं मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ। देख रहा हूँ कुछ स्टार्टअप्स है, मतलब जो रिव्यू चल रहे हैं। लेकिन ऑन द निगेटिव साइड आई वुड से, अगर आपका निगेटिव इन द सेंस, इन द शॉर्ट टर्म निगेटिव 2-3 मंथ्स, जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ओके, ऐसा नहीं मैं करूंगा नहीं, मैं करूंगा, जरूर करूंगा। तो मैंने ऑलरेडी 2 ऑटोमोटिव सेक्टर से ही मेरे स्टार्टअप्स है, जिसमें से मैंने एक एग्जिट किया है, एक अभी भी है, और मेरे बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। लेकिन मैं टाइम ले रहा हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ। तो ये है, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दूसरी है, होटल्स है, एयरलाइन रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, एविएशन रिलेटेड। मैं एक बात कर रहा था दुबई की एविएशन रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन मैं अभी वेट कर रहा हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ कि ये कहाँ जा रही है इंडस्ट्री। तो हाँ, थोड़ा सा राइट, चेंज राइट। हुआ है, लेकिन टोटल कॉर्पस में चेंज नहीं हुआ है। वो जाएगा तो जाएगा ही। सो मंदार ये कहना चाह रहे हैं कि वो रुकेंगे नहीं, बस ऑब्वियसली सिंस ही इज इन्वेस्टिंग, सो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि कहाँ पैसे लगाने से आरओआई है। सो डेफिनेटली सेगमेंट जरूर देखेंगे, बट वो रुकेंगे नहीं कि भाई अब 6 महीने 8 महीने पैसे ही नहीं निकालूंगा। सो और मेरा यू आर द एक फर्स्ट दूसरा भी पर्सन। कहना है, एक दूसरा भी कहना है, अगर आप मुझे इजाजत दो तो ना ना, मैं प्लीज प्लीज स्टार्टअप प्लीज गो। फाउंडर्स को भी बता सकता हूं कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो, अगर आप ऑटोमोटिव में हो, अगर आप एविएशन में हो, तो रुको ना, रुको नहीं। कि आप ये मत समझो कि मेरी इंडस्ट्री अभी डाई हो गई, मेरी इंडस्ट्री खत्म हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा स्टार्टअप आइडिया फेल हो गया, ऐसा आप समझो मत। आप थोड़ा टाइम ले लो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, और 2-3 महीने के बाद फिर से उभर के आओ। इंडस्ट्री आएगी वापस, जरूर आएगी।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ना ये आपने बात बोली ना, इसमें मेरा क्वेश्चन एक दिमाग में आया मेरे, एंड आई वांटेड यू टू प्लीज एड्रेस दिस, दिस इज फॉर यंग एंटरप्रेन्योर। जैसे एंटरप्रेन्योर्स की आपने भी बात की ना, देखो क्या है कि ये पोस्ट कोविड में सर, ये पेंडेमिक के बाद देयर सो मेनी स्टार्टअप, कुछ सेगमेंट्स हैं जो जिनके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई है, जैसे आपने एजुकेशन की बात की, हेल्थ केयर की बात की, लेकिन बहुत सारे जो आपने नाम लिए उनके लिए आया है चैलेंज, राइट? अब अगर वो स्टार्टअप फाउंडर्स अपने आप को थोड़ा सा मानसिक संतुलन बनाए रखें और अपने आप को 5-6 महीने तक अगर वो रोक के रख लें, तो चीजें फिर से सही हो जाएंगी। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? नाउ आई वांट योर Sure. सजेशन, सिंस यू आर मेंटर एज वेल, आप इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर और स्टार्ट मेंटर एज वेल, राइट? सो मैं आपसे चाहता हूं कि ये बताएं कि उस तरह के, जैसे सपोज करो मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूं जो ऐसे सेगमेंट में काम कर रहा था जिसमें मैं मुझे मार पड़ी है एंड आई एम सफरिंग, राइट? सो अब मुझे अपने आप को 3-6 महीने बचा के रखना है। सो व्हाट विल बी योर suggestion for me to keep myself going for next 2, 3, 4, 5 months, to keep my customers, my clients intact with me? So इसमें मैं आपका सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट सजेशन चाहता हूँ जो हम तक पहुंचे, प्लीज मदर। मैं 2-3 सजेशन दे सकता हूँ। प्लीज जैसे गो अहेड, प्लीज। पहली बात तो यह है कि ये जो टाइम है, पहले तो लोगों के पास अभी स्टार्टअप फाउंडर्स के पास टाइम ज्यादा है, बराबर है, क्योंकि बिजनेस डाउन हो गया है। तो जी, पहली सजेशन तो ये है कि अभी ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, बराबर है। राइट, लेकिन मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अगर टाइम मिला है, यू नो, तो ये आप टाइम कैसे यूटिलाइज करें, ये पहली पहली बात है। तो अगर आप ऑटोमोटिव सेक्टर में हो, एविएशन सेक्टर में हो, मैं बोलूंगा ये डाउन टाइम जो है आपका, ये ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। आप रिसर्च करें, आप पढ़े, आप रीडिंग बहुत ज्यादा करें। आप अगर आपके इंडस्ट्री में अगर लीडर्स कोई है, उनके इंटरव्यूज है यूट्यूब में, तो बहुत बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है। तो आप वो आपका डाउन टाइम वैसे यूज करें। जितना आप ज्यादा सुनोगे, जितना आप ज्यादा लिसन करोगे, जितना आप ज्यादा पढ़ोगे, उसमें आपको उसमें से ही आपको आइडिया आ जाएगा, आपका दिमाग वैसे काम करना चालू करेगा और आपको समझ में आएगा, ठीक है, इंडिया में ये सिचुएशन है या मिडिल ईस्ट में ये सिचुएशन है, लेकिन यूएस में ये नहीं है, चाइना में ये नहीं है। देखो, सारे इकोनॉमीज आज डाउन है, सारे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज डाउन है, लेकिन अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग सेक्टर्स में है। तो ये पहली मैं बात करूंगा। दूसरी ये मैं करूंगा कि आप आपका बिजनेस मॉडल या फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर आप कैसे चेंज कर सकते हो, उस पे ये करो। अगर ऐसे होता है कि वो कहावत है, वन साइज डजंट फिट ऑल, राइट? मैं एक सजेशन नहीं दे सकता जो सबको फिट हो जाए और सबका अच्छा हो जाए। तो ये ऑफ मैं कोर्स, ब्रॉडली मैं ये 2-3 सजेशंस बोल सकता हूँ कि आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर आप फिर से देखिए। वो मॉडल जी, आपका एसेट लाइट कर सकते हैं, जिसको एसेट लाइट बोलते हैं। मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिर बड़े मशीनरी, बड़े इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट ना करें, और अगर उसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेके आए, जो आपका सेल्स के हिसाब से ग्रो हो सकता है, तो वो आप बिजनेस मॉडल फिर से देख ले, फाइनेंशियल मॉडल आपका फिर से देख ले कि आप उसको चेंज कर सकते हैं क्या टाइम के हिसाब से। ये दूसरी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी ये बात है कि कोई भी सेक्टर जब नीचे जाता है, तो नीचे जाता है मतलब लोग बोलते हैं कि उनका कॉस्ट कम हो, बराबर है। और आपने देखा होगा 2008, 2009, 2010, अभी ये सोशल मीडिया पे ये कुछ पोस्ट बहुत वायरल हो गई कि ये 2009 और 2000 में उबर और स्लैक जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस जो आगे जाके $1 बिलियन से बहुत ज्यादा वैल्यूएशन उनका हो गया, वो सारे राइट, एप्लीकेशंस की जन्म 2008, क्राइसिस में 9 हुआ, और 10 में हुआ था। तो ये क्यों क्राइसिस में हुआ हुआ। था? ये क्यों हुआ था? क्योंकि जब सारी इकोनॉमी डाउन हो जाती है, तो अपना दिमाग सर्वाइवल मोड पे चला जाता है। ये मेरी थ्योरी है, वाओ, मुझे पता वेरी नहीं वेल, है राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि आप जब सर्वाइवल मोड पे चला जाते हो तो आप सर्वाइव करते ही हो। और सर्वाइव करने के लिए फिर लोग इनोवेटिव बन जाते हैं, क्रिएटिव बन जाते हैं, कुछ नया ढूंढ के निकालते हैं और आगे जाके वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आप वेरी डरो नाइस। मत, मेरा यही सलाह है कि डरो मत तो और चलते रहो, और कुछ ना कुछ आगे अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं, तो ये जो आपने बात बोली है, मतलब व्हाट अ क्लियर कम्युनिकेशन। मेरे व्यूअर्स को बहुत फायदा हो रहा है, जो सुन रहे हैं, आगे जो सुनेंगे उनको भी। आपने बहुत अच्छी बात बोली। और क्या हम ये बोल सकते हैं आज इस ऑन रिकॉर्ड, मंदार, मैं बड़ा प्राउडली ये बोल रहा हूँ, और आपके साथ भी, कि आज से 5 साल बाद हम देखेंगे कि जो बड़े बड़े नाम है स्टार्टअप्स के, वो आज ही इसी दौर में शुरू हुए थे, जब हम जरूर सबसे जरूर, शुक्रिया। मेजोरिटी ये ऑफ देम, यस। मेजॉरिटी ऑफ देम, ऐसा मुझे बिल्कुल फील होता है, क्योंकि बहुत आपने ना साइंटिफिकली इसका मैं ये कह सकते हैं एनालिसिस किया कि भाई
जब हमारे पास एकदम बर्बादी की स्थिति में होता है, हम सर्वाइवल मोड में आते हैं और उस वक्त हम इनोवेशन लेके आते हैं और अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक तो एक मेरा सिंपल सा और, क्योंकि मैं जब आपसे जनरलाइज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो आपके जनरलाइज आंसर आ रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स की हेल्प कर सके। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि हाउ मंदार जोशी सीज लाइफ आफ्टर दिस पेंडेमिक, कैसे आप देखते हो पोस्ट कोविड एरा को, स्टार्टअप इकोसिस्टम के हिसाब से पूछ रहा हूँ। नहीं, पोस्ट कोविड एरा देखो, एक एक बात यह है कि जब कोई क्राइसिस आ जाता है और अगर आपको बाउंस बैक होना है, बराबर है, तो आपका जितना छोटा एंटरप्राइज है उतना जल्दी बाउंस बैक हो जाएगा, क्योंकि आप जितना छोटा एंटरप्राइज है, छोटा कंपनी है, उतना जल्दी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, उतना जल्दी आप सोच सकते हो। जितना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, जी जैसे अगर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फिर उनके बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो जाएंगे, और उनकी इतनी बड़ी बोट जहाज होता है, जो कैसे आप बाउंस बैक करो, ये उनका प्रॉब्लम होता है। ये स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी चीज है कि जब बाउंस बैक होगी इकोनॉमी, सबसे ज्यादा फायदा स्टार्टअप को होगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी पलटी मारेंगे, बहुत जल्दी आगे आ जाएंगे, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं वो। तो मुझे लगता है लाइफ आफ्टर कोविड, अगर आपका क्वेश्चन है, तो अच्छा ही रहेगा। और मैंने एक बात देखी थी आपके वीडियो में, और वो एक्चुअली मेरी थ्योरी भी है। हमेशा मैं मेरे जो 1-to-1 मेंटोरिंग मैं करता हूँ स्टार्टअप्स की, मैं उनको वही बताता हूँ कि आप क्राइसिस से क्यों डरते हो, वैसे भी आपकी लाइफ कहाँ अच्छी थी बिफोर कोविड, थोड़ी आपकी लाइफ बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत आप बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत पैसे फूल मिल रास्ते रहे में थे, आपको फूल दिखते थे, यस यस बहुत यस। लग्जूरियस थी, नहीं थी ना, वैसे भी नहीं थी। तो आपको आपको आदत है इसकी, तो थोड़ा सा और हो गया है, तो आप अगर सर्वाइवल मोड पे चले जाए तो बाउंस बैक जल्दी कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव। राइट, वेरी ट्रू सर। बिल्कुल। क्या हुआ था कि जब ये पेंडेमिक की सिचुएशन हुई थी तो इमीडिएटली न्यूज़पेपर्स कवर के, मीडिया वाले तो एक्शन में आ जाते हैं ना पूरी तरह से, तो उसमें लिख के आया था कि स्टार्टअप की राह मुश्किल आई कोविड की वजह से। तो मैंने उसमें लिखा कि स्टार्टअप की राह में मुश्किलें कब नहीं थी, कब फूल बिछे हुए थे। सो जब एग्जैक्टली, किसी के लिए तभी एग्जैक्टली, तो मेरी अपॉर्चुनिटी भी है यही तभी। थ्योरी है कि हाँ। यस यस, वेरी नाइस। सो मैं आपसे एक दो चीजें यहाँ पे करेंगे। एक तो मैं आपसे ओवरऑल क्लोजिंग स्टेटमेंट लूंगा पहले तो, और फिर मैं आपके बीइंग एन इन्वेस्टर आपसे कुछ सेगमेंट्स के मैं नाम लूंगा वन बाय वन, और आपको मुझे ये आखिरी सेगमेंट में वो नाम लूंगा, और आपको जो पर्सनल ओपिनियन है उससे नहीं जाता है क्या दुनिया सोच रही है, आपको पर्सनल ओपिनियन जो है कि ये जो सेगमेंट है, ये जो सेक्टर है, लाइक मैं हेल्थ बोलूँ तो आप लगता है बूम करेगा आने वाले टाइम में, तो आप बोलेंगे बूम, और आपको लगता है कि बर्स हो जाएगा तो आप बोलेंगे बर्स। तो मैं 10 ऐसे सेक्टर्स के नाम लूंगा और आपको बूम और बर्स बोलना है, और अगर आप कुछ लॉजिक या कुछ रीजनिंग देना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं वहां पे, राइट। लेकिन बिफोर गोइंग देयर, लेकिन ये मैं जब बस बोलूंगा, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा सुमित जी, कि मैं जब बस बोलूंगा किसी के लिए, भगवान करे मैं किसी के लिए बस ना बोलूं, लेकिन मैं अगर किसी के लिए बस बोलूंगा तो स्टार्टअप फाउंडर इसको निगेटिवली ना ले, वो सोचे कि ये बस मतलब नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए है, बाद में तो सारे भूमि होने वाले हैं। ठीक है। जिसपे असर हुआ है और जिसमें अपॉर्चुनिटी है उसकी बात हम कर रहे हैं। और उसके पहले, ये बोलने के पहले आपने बता ही दिया कि एक्शन क्या लेना है लोगों को। आपने ये भी बता दिया कि हाँ। फाउंडर्स जो जिनको असर हुआ है, इसका इफेक्ट हुआ है, वो भी चिंता ना करें, चीजें सही होगी, सब कंट्रोल में आ जाएगी। सो ये तो आपने बता ही दिया है पहले, अब तो हम इस पे बात कर लेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग देयर, मैं आपका एक स्टेटमेंट चाहता हूँ, ओवरऑल सजेशन टू स्टार्टअप फाउंडर्स, एक जनरल सजेशन टू एवरीवन टू फाइट दिस सिचुएशन एंड कीप गोइंग। सो एक ओवरऑल जो आप अपना स्टेटमेंट देना चाहें प्लीज। मुझे लगता है दो दो चीजें जो मैंने पहली एक तो बोली थी, और दूसरी में बोलना चाहूंगा, कीप पेशेंस। हम सब लोग इसमें से जा रहे हैं। अगर आप आज स्टार्टअप नहीं कर रहे होते और आप कहीं जॉब कर रहे होते, तो आपकी जॉब में अगर पेमेंट की कटौती आती, या फिर आपकी जॉब चली भी जाती, किसी को पता नहीं है कि क्या हो जाता। तो सारे कुछ जब आप निगेटिव सोचते हो, तो आप पेशेंस रखो, जो नीचे जाता है वो ऊपर आ ही जाता है डेफिनेटली, और वो और उभार के ऊपर आ जाएगा। तो ये पेशेंस रखो, तो मैं ये पहली बार बोलना चाहता हूँ। और दूसरी, जैसे मैं बोला कि गो टू योर सर्वाइवल मोड। समझो कि कल मेरा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कल मेरी रोजी रोटी की नौबत आ जाएगी, तो आपका दिमाग वैसे जब काम करना चालू करेगा, कुछ ना कुछ तो सोचेगा। मैं आपके लिए नहीं सोचूंगा, ऑन योर बिहाफ आई कैन नॉट थिंक, यू हैव टू थिंक, बट ट्रू। आपका दिमाग वो सोचेगा जगह, अगर आप वो सर्वाइवल मोड पे जाते हो। तो यही, बाकी तो मैं
यही बोलना चाहूंगा। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शॉर्ट में जिस तरीके से आप कन्वे कर रहे हैं दिस स्कूल, और समझ लें आपने ये बोल दिया है ऑन रिकॉर्ड दैट आपका जो बजट है, आपका जो फ्लो है इन्वेस्टमेंट करने का, वो नहीं रुकेगा। तो आई एम श्योर इस ऐसे भी आपके पास बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं इस इंटरव्यू के बाद, इस डिस्कशन के बाद, कॉन्वर्सेशन के बाद, यू विल स्टार्ट रिसीविंग नो एन नंबर ऑफ इन्विटेशंस ऑन लिंक्डइन एंड पिचेस यू विल बी रिसीविंग ऑन ईमेल आईडी कि भाई आई एम गोइंग टू बी वेरी बिजी, यू आर सेइंग। सो बिकॉज लोग आपके पीछे ही पड़ जाएंगे, क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि 6 महीने 8 महीने पैसे नहीं निकलने वाले हैं। वहां पे एक इन्वेस्टर इज सेइंग कि भाई मैं सेक्टर जरूर देखूंगा, बट मेरा बजट जो एलोकेट कर रखा है वो मैं करूंगा, विच इज वेरी गुड। आप जैसे लोगों की जरूरत है। एंड ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग इट्स रियली अ प्लेजर एंड ऑनर हैविंग यू on my show, Mandar, and definitely Startup Chopal will be happy to get associated with you officially, professionally, and one of our advisors, mentors. Sure. So we'll It definitely will do be that. my pleasure. Definitely Yeah. my pleasure. Because your thought process is very clear, and people like you are very, very much required to this ecosystem. And अब आपने बोला ना कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर ही पा रहे हैं आप जैसे लोगों के सपोर्ट की वजह से, और नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मेरा ये सपना है एज एन एंजल इन्वेस्टर कि आइडियाज कभी पीछे पैसे के पीछे ना भागे। आज के बाद 2 साल 3 साल 5 साल में ये सिचुएशन आया कि पैसा आइडिया के पीछे भागे। पैसा ढूंढे कि कौन सा फाउंडर अच्छा है, फाउंडर ना ढूंढे कि पैसा कहां से मिलेगा। ये सिचुएशन आ जाएगी और हम सब लोग इक्वली इंपॉर्टेंट है इसमें। आपके जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, जेन्युइनली मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी कि आपने Tier 2 सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर खोला जहां पे लोगों को नहीं मिलता है गाइडेंस, और ये बहुत इनक्रेडिबल बात है। मैं बहुत खुश हूँ। Thank you so much. And now we'll be seeking your support as well to make it big and more effective. So whatever I can help in terms of mentoring, yes, why not? Surely. अब मैं अपने लास्ट सेगमेंट में आता हूँ, जिसको मैं बोल सकता हूँ रैपिड फायर। और रैपिड फायर राउंड में मैं आपसे 10 सेगमेंट्स के नाम लूंगा और आपको बताना है बूम और बर्ड्स। और डिस्क्लेमर पहले लगा चुके हैं व्यूअर्स मेरे जितने फाउंडर्स हैं कि अगर ये बर्ड्स बोलते हैं तो उनके कहने का मतलब कि अभी असर हुआ है, बट धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो जाएगी अगर एज ए लीडर, एज ए फाउंडर आप सही ढंग से एक्शंस अभी लेते हैं तो नेगेटिवली नहीं ले। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो आर यू रेडी, मंदार? Yeah. Okay. First is healthcare. Boom. Definitely boom. E-commerce. Boom. Yeah. Depending on how is your model, but boom. Yes. Okay. आप कोई भी अगर एक दो लाइन उसमें ऐड करना चाहते हैं तो क्लैरिफाई यू कैन डू दैट, राइट? कई ऐसे होंगे जो बूम भी हो सकते हैं, बर्स्ट भी हो सकते हैं, तो दोनों वाले केस में नहीं, ई-कॉमर्स क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। ई-कॉमर्स मैंने क्यों 1 सेकंड लिया उसके लिए, क्योंकि ई-कॉमर्स अब बहुत बड़ा अभी ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया है। ई-कॉमर्स में बहुत ज्यादा ब्रांचेस आ गए कि डिलीवरी कौन कर रहा है, आप वेयर हाउसिंग कर रहे हो या कोई और कर रहा है, ये सारी चीजें आ जाती है। तो हाँ, ओवरऑल बूम है, लेकिन बिजनेस मॉडल देखना पड़ेगा। Please stay there. Yeah. So are you there? Can you hear me? Yeah. Yes. Okay. So ये कभी फ्लक्चुएट होगा क्योंकि बाहर थोड़ी बारिश भी हो रही है और थोड़ी हवा भी चल रही है तेज। Okay. So yeah, second e-commerce. E-commerce boom. अच्छा, done. Sorry, it's done. Electric vehicles. In the long term boom. Oh, right now steady and then in the long term boom. Yeah. अभी प्रायोरिटी नहीं होगी अभी लोगों की। फोर्थ इज टेलीकॉम। बूम, डेफिनेटली। एजुकेशन। एजुकेशन जैसे मैंने बोला, अगर आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म अगर ऑनलाइन में ला सकते हो तो डेफिनेटली बूम है। वेरी नाइस। एग्रीकल्चर। सॉरी, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बूम, क्योंकि अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज्यादा स्कीम्स आ जाएंगी और बारिश का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो एग्रीकल्चर में अगर आप इनोवेशन ला सकते हो, नई टेक्नोलॉजी ला सकते हो, डेफिनेटली बूम है। सुपर। मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग अगेन, अगर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, वेरी हेवी एसेट बेस्ड, थोड़ा डिफिकल्ट है अभी टाइम। लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स अच्छा ही चलेगा,
एसेट लाइट मॉडल है, अगर छोटे वर्कशॉप्स है, कुछ छोटी इक्विपमेंट है, छोटे टूल्स है, तो अच्छा चलेगा मेरे ख्याल से, स्टेडी रहेगा और उसके बाद में बूम हो जाएगा। सुपर। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन अगेन डिपेंड्स कि आप क्या लॉजिस्टिक्स कर रहे हो, आप सप्लाई चेन कौन सी, अगर आपकी एफएमसीजी है जो कंज्यूमेबल्स है, या एफएमसीजी है या फूड स्टफ है, ये बूम हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन बाकी अगर आपका एविएशन या शिपिंग के ऊपर बहुत इंटरनेशनल ट्रेड बोल रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। ओह ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिनटेक। फिनटेक अभी स्टेडी जाएगा और लॉन्ग टर्म में बूम आ जाएगा, ये मेरा मानना है। Okay. It was a very hot sector, by the way, before COVID. So fintech is one sector I would say before COVID was a very hot sector in India, Middle East, China, USA, कोई भी इकोनॉमी आप ले लो, अभी थोड़ा स्टेडी आ जाएगा और उसके बाद में बूम ही है, स्पीड पकड़ लेगा, है ना? जरूर। एंड फाइनली जो बड़ा ऑब्वियस है, इसका आंसर होगा मैं जानता हूँ, लेकिन इसका लास्ट है फिटनेस एंड वेलनेस। फिटनेस एंड वेलनेस, अगर आप अगेन कोई इनोवेशन लाए, टेक्नोलॉजी लाए कि आपको फिजिकली जिम में जाना ना पड़े और आप अगर घर में कुछ कर सकते हो, या कुछ इक्विपमेंट लाए, कई सारे यूएस में भी आ गए हैं इक्विपमेंट जो वो मल्टीपल प्रेशर पॉइंट्स पे काम करते हैं, मल्टीपल मसल्स पे एक ही साथ काम करते हैं, तो उनके लिए तो बूम है, डेफिनेटली बूम है। राइट, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि अब बूम ही है, क्योंकि वेलनेस है सब, लेकिन है अगर कोई, क्योंकि लोग अब नहीं आएंगे उस पे। सो एग्जैक्ट 31 मिनट्स 40 सेकेंड्स में हमने अपना कॉन्वर्सेशन खत्म किया है, और लोग बड़ा, आपको एक दो लोग क्या आए हैं, और मैं क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि जब खत्म होता है उसके बाद, जब हम लाइव इसको वीडियो का एंड कर देते हैं तो लोग क्वेश्चन पुट हो रहे थे। मैं बता दूं कि मेरे पास ही बहुत सारा बात करने के लिए था, क्योंकि मंदार सच पहली बार इतना मौका मिला मुझे बात करने के लिए, और मुझे लगता है कि मैंने मोर और लेस सारी चीजें कवर कर ली जो लोग सुनना चाहते होंगे और समझना चाहते होंगे। लेकिन एक दो लोग हैं जिन्होंने, जो आपके फैन भी रहे होंगे, आपको एडमायर करते हैं। मीत गुसाई, इन्होंने लिखा कि हेलो मंदार जोशी सर, दिस इज मीत, हाउ आर यू। एंड सिद्धि कोलवालकर लिख रही है कि हेलो मंदार सर, आई फॉलो योर पोस्ट ऑन लिंक्डइन and I was waiting for you to speak live today. So fan following him, and of course your contents are very good. People, if you want to connect with him, you can follow him on LinkedIn, और बहुत सारी चीजें आपको और जानने को मिलेंगी जितना अभी संभव था हमने किया। So thank you so much Mandar for being, और अब तो we'll keep talking, discussing so many things we are going to work together. So thank you so much. You kindly stay for a minute, right? So thank you so much for being with me. So ये थे मंदार जी, शानदार तरीके से प्रिसाइजली सारी चीजों को कवर किया, और क्लियर इनकी कम्युनिकेशन से इनकी क्लैरिटी का पता चल रहा था कि कैसे चीजें हो रही हैं, और बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। तो जो लोग ये सोचते थे इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने मॉडल पे काम करें, और अगर वो मॉडल ऐसा होगा जो स्केल हो सकता है और सॉल्यूशन दे रहा होगा इस सिनेरियो में, इस कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से, तो डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। सो होप दिस विल हेल्प यू ऑल, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, फाउंडर्स हैं। एंड अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अपने अगले गेस्ट के साथ। सो ये वीडियो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्टअप चौपाल टीवी पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे, great evening. Bye-bye.